चलो, so yesterday you studied about the geographical conditions required for rice, and one more question is from that topic, that is, what are the major areas or chief areas of rice cultivation? Northern plains, coastal plains, and northwest plains, and northeast plain. Yes, the whole of the northern plain, the eastern and western coastal plain. Okay, you mute yourself, Abhishek. हाँ. हॉकर्स की आवाज आ जाती है ना रोड पर से. तो राइस डेल्टिक रीजन्स. हाँ, स्टेट का अगर नाम लिखना पड़े, स्टेट्स का नाम लिखना होगा तो हरियाणा, हरियाणा, yes. वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान. नहीं, वो तो वीट के लिए हुआ ना. आपको स्पेशली राइस के लिए जो एरिया लिखना है वो बताओ. मैम, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान, हाँ, हाँ तो ठीक है. देखो, राजस्थान. हाँ, ये जो लिखे ना तुम, वो ओरिजिनली वीट एरियाज है जिसमें राइस का कमर्शियल क्रॉप ग्रो होता है. ठीक है ना, तो ये तो लिखेंगे ही, लेकिन इसके ओरिजिनल स्टेट्स का अगर नाम लिखना पड़े कि शुरुआत से राइस कहाँ कल्टीवेशन होता था तो क्या लिखोगे? तो इसमें ये सब ईस्टर्न स्टेट्स आएंगे. सतलज प्लेन्स. ईस्टर्न स्टेट्स का नाम पहले लिखोगे राइस में, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यस, पंजाब, हरियाणा, ये सब बाद में लिखना. ये सब जो है ना, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये सब राइस ग्रो करने लगे. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब ठीक है ना, ये बाद में ऐड हुए हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय से. लेकिन शुरुआत से राइस ग्रोइंग एरिया कौन कौन थे? तो ईस्टर्न स्टेट्स का नाम लिखोगे, जैसे असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ये सब पहले लिखोगे. ठीक है ना, और तब फिर साउथ में आता है. हाँ, साउथ में. तो तुम अभी एक मैप देखना जो कि किस तरह से डायगोनली अगर देखें तो ईस्टर्न हाफ ऑफ द कंट्री इज सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन. यू सी दिस मैप. You can see the distribution of the map of rice, which are the major areas of rice cultivation and which are the minor areas. Or see this map. The darker shaded part is the major area of rice cultivation. Then you find the name of the states here: Eastern Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam, Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. देख रहे हो ना, ये सारे स्टेट्स में हैं. हैदराबाद भी. हाँ, और इधर से केरला, वेस्टर्न साइड से देखें तो केरला, गोवा, ये सब भी हैं. ठीक है, और ये सारे मेजर एरियाज हो गए राइस के. और माइनर एरियाज में ये सब है: पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब जो है ना, वो किस में आ जाएंगे? माइनर एरियाज में. क्योंकि ओरिजिनली ये वीट बेल्ट है. इधर वाला क्या है बताओ? वीट बेल्ट है. और ये है राइस बेल्ट, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न हाफ. डायगोनली ईस्टर्न हाफ ऑफ इंडिया इज राइस कल्टिवेटिंग एरियाज, and this side is the major area of wheat. But due to green revolution, due to the introduction of green revolution, these are also cultivating bumper crop of rice, which are mainly sold. Okay, that is, rice is commercial crop in this part. You can mention the name of these states also, but firstly you have to mention the name of the eastern states of this side. Have you understood? Now come to the next topic, that is wheat. Wheat is a rabi crop. Previously also you have studied that wheat is a rabi crop, and it is the second most important cereal crop. So which one is the first important cereal crop of India? Rice. Rice is the most important
staple crop or cereal crop of India. Means more dependency is on rice, and then the next one is wheat also. So rice and wheat are the most two important food crop of India. And after these, the position of millets come. In north and northwestern part of the country. That means wheat is cultivated in north and northwestern part of the country, which is the minor area for rice. This is Rabi crop, which requires cool growing season. What type of temperature is required? Cool growing season. And rainfall is between 50 to 75 centimeters. Means wheat requires less temperature than rice. Wheat requires less rainfall than rice. And wheat can be grown in both the soils of the alluvial soil and black soil. This is the crop of alluvial as well as black soil, both. So it is grown in Ganga Satluj plain as well as the black soil of the Deccan. In the Peninsular Plateau, the northern part is known as Deccan. So it is grown in Maharashtra also. Okay, so now you start writing a question. Write about the geographical conditions of wheat. Start writing. Write about the geographical conditions required for wheat. Start writing. Wheat is a Rabi crop which requires following geographical conditions. Write fast. Wheat is a Rabi crop which requires following geographical conditions. Number 1, temperature. Wheat requires cool growing season. Wheat requires cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. Ripening when the wheat is ready. यहाँ से लिखो. Wheat requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. Repeat. Wheat require a following geographical features. First is temperature. Wheat requires cool. What happened, Hariram? Not able. Ma'am, can I? Cool growing seasons and bright sunshine at the time of ripening. हाँ, ठीक है ना. कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन, मतलब धूप चाहिए कब? हार्वेस्टिंग के टाइम में, जब तैयार होने लगता है व्हीट, राइपनिंग होने लगती है उसकी. और हेलो मैम. हेलो. यस. तो सुनो, इसमें ना तुम यहाँ पे कुछ टेम्परेचर हम ऐड करवा रहे हैं, वो लिखो इसी सेंटेंस में. 10 to 15 degree at the time of sowing. 10 to 15 degree Celsius at the time of sowing, SOWING, and 20 to 25 degree Celsius and 20 to 25 degree Celsius at the time of harvesting. फिर से सुनो, है ना? 10 to 15 degree Celsius at the time of sowing and 20 to 25 degrees Celsius at the time of harvesting. ठीक है ना? यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कितना? कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन, इतना ही लिखा हुआ है. तो इसमें तुम थोड़ा टेम्परेचर भी ऐड कर लिए कि ग्रोइंग सीजन में 15 to 20 डिग्री, नहीं 10 to 15 डिग्री, और हार्वेस्टिंग टाइम में 20 से 25 डिग्री. ठीक है ना? और राइस के लिए याद है ना कि राइस तो 25 से शुरू ही होता है, 25 एंड अबव चाहिए.
उसके लिए Yes, टेम्परेचर ma'am. 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। और इसमें क्या है कि 25 डिग्री तक में तो हार्वेस्टिंग हो जाती है। और ग्रोइंग पीरियड में कितना है फिर से बताओ। Ma'am, growing period 10 to 15. 10 to 15 degrees Celsius. 10 to 15 10-15 degrees Celsius sowing time. हाँ ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखो, रेनफॉल। सेकेंड पॉइंट, रेनफॉल इट रिक्वायर्स 50 to 75 centimeter. See here, It requires 50 to 75 centimeters of rainfall, evenly distributed over the growing season. Fifty to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. इसका मतलब क्या हुआ कि जब वीट के प्लांट ग्रो करते रहते हैं तो उस समय इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, मतलब उस पूरे एरिया में इक्वली रेनफॉल चाहिए, और जो कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से मिलता है विंटर रेनफॉल। ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट लिखिए, सॉइल। Wheat yes, grows, ma'am. wheat grows well in the alluvial soil of Ganga Satluj plains, and in the black soil of the Deccan. Wheat Yes, grows ma'am. हो गया. in alluvial soil of the Ganga Satluj plain and the black soil of the Deccan. Deccan कहाँ है बताओ? Deccan Plateau. पेनिनसुलर प्लेटो पढ़े हो ना, उसी का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट Yes, जो है ma'am. डेक्कन को एरिया, Deccan Plateau कहते हैं. क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल है। Yes, ma'am. ये ब्लैक सॉइल क्यों बना है वहां पर? क्योंकि वहां ये Due to deposition of नहीं, इग्नियस रॉक के वेदरिंग और इरोजन से बना है, इसलिए उसको Rock of due to deposition of igneous rock. और देखो लेबर का पॉइंट तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन चूंकि हम लोग को राइस और व्हीट दोनों को कंपेयर करने के लिए आता है, इसलिए ये भी पॉइंट लिखा देते हैं। लिखो लेबर, फोर्थ पॉइंट, लेबर। Wheat requires less laborers than rice. Wheat requires less labor than rice. ये भी लिख सकते हैं। Yes, ma'am. Completed all the points. हाँ, अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, mention the major wheat producing states of India. Mention the major wheat producing states of India. Mention the major Wheat producing states of India. And right from here, the major wheat producing states are, Punjab, Haryana, UP, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan. हाँ, बिहार एंड राजस्थान। देखो बिहार का भी रैंक है वीट प्रोडक्शन में, समझ गए ना, मतलब यहाँ पे भी सफिशिएंट वीट कल्टीवेशन होती है। वीट, बिहार एंड राजस्थान। Have you completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Aman Krishna, you read the answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wheat temperature. Wheat requires cooling, growing season and bright sun. 10 to 15 degrees Celsius at growing time, 20 to 25 degrees Celsius harvesting time. Rainfall. सुनो एक मिनट, या इस पॉइंट को फिर से पढ़ो, शुरू में सेंटेंस कुछ गलती है, ठीक से पढ़ो, उसको करेक्ट करेंगे।
temperature. Wheat requires cooling growing season No, cool. Listen, cool growing season. Wheat requires cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. Correction कर लो, कर लिए? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट रीडिंग करिए उसका. Rainfall. It requires 50 to 75 centimeter annual rainfall, evenly distributed to growing. हाँ, evenly distributed over the growing season. Okay. Growing season. हाँ, soil. Soil. हाँ. Wheat growing zones, Ganga to plus plains, black soil region. Of the Deccan. ठीक है ना? Yes. ब्लैक सॉइल कहाँ पर है? डेक्कन में है. Yes. और Deccan Plateau. तो पेनिनसुलर प्लेटो का ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जिसको डेक्कन कहते हैं. Ma'am, I can read all the points. नहीं, अब तुम दूसरा Ma'am, I can. पढ़ो, दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो. मेजर एरिया. Mention the major wheat producing states in India. The major states producing wheat in India are first is the Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, and Rajasthan. Okay. Now see the picture. What is the difference in the picture of wheat and rice? Who will answer? Ma'am, rice grows entirely in water, but the wheat is on soil. Ma'am, can I? No, what is the Ma'am. yes? What is the difference in appearance of wheat and rice? वो देखने में फोटो में क्या डिफरेंस लग रहा है? ये बता. Ma'am, they have gold. Ma'am, they have Ma'am. golden. Ma'am, they have golden type of appearance, and they have. और कुछ? और बताओ. Ma'am, they are rigid and straight upward. हाँ, But ये. the rice crop is not. Very good. Who is Utkarsh is saying? Who is saying? Yes, ma'am. हाँ, तो उत्कर्ष का सही जवाब है. ओके, वीट जो है ना वो ऐसे स्ट्रेट रहता है, टाइट रहता है, और राइस के क्रॉप ना झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं. देख रहे हो ना, दोनों फोटो में डिफरेंस देख लिए. अपने पास किताब है सबके पास, उसके फोटो का डिफरेंस देखो कि राइस और वीट के पिक्चर में क्या डिफरेंस है. यू सी दिस, कलर में भी डिफरेंस है. ये गोल्डन कलर हो जाता है और वो भी गोल्डन कलर हो जाएगा राइपनिंग के बाद, लेकिन यहाँ जो कलर डिफरेंस तो है. और इट इज रेडी टू हार्वेस्ट. Rice is ready to harvest and the crop of rice is like this. It is bended. Okay. What is the next crop? After rice and wheat? Ma'am, millets. Millets. है ना. तो अगर राइस वीट अच्छे से तुम लिख लिए ना, तो तुमको कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेयर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ राइस एंड वीट. तो तुम दोनों के टेम्परेचर को कंपेयर करोगे, फिर दोनों के रेनफॉल को कंपेयर करोगे. आपके पास 4 पॉइंट है ही, चारों को कंपेयर कर दीजिए. ठीक है ना. Okay, ma'am. अब आइए मिलेट. व्हाट आर मिलेट्स? मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन और रफ ग्रेन्स, है ना. राइस और वीट खाने में जितने अच्छे लगते हैं उतना टेस्ट में ये अच्छा नहीं लगेगा ज्वार, बाजरा और रागी, क्योंकि ये कोर्स ग्रेन होता है, मोटे अनाज होते हैं, रफ होते हैं. लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इंडियन एग्रीकल्चर में मिलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो व्हाट आर मिलेट्स? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या लिखेंगे? मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स विच इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी. ठीक है, बोलो, आंसर रिपीट करो तो. व्हाट आर मिलेट्स? Millets are Millets are those crops अस्मिता? which include jowar, bajra, and ragi. ठीक है, मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स विच इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी. ठीक है ना. कभी तुम लोग देखे हो ये सब? मिला है देखने को कभी? Yes, Yes, ma'am. In my ma'am. village. Yes, ma'am. In my village. बाजरा देखे हो? बाजरा का ग्रेन्स? Yes, ma'am. बाजरा का रोटी भी बनता है मैम. हाँ बिल्कुल.
और ज्वार बाजरा ये सब रफ ग्रेन है, सबकी रोटी बनती है और वो Yes, बहुत ma'am. ही In Rajasthan, हाँ, राजस्थान तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा में, और ये जो ज्वार yes, है ना, ma'am. ज्वार महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और रागी सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है। तो देख रहे हैं ना कि कम वाटर वाले एरिया में होता है, जहाँ पानी कम बरसता है वहां पर भी ये ग्रो हो जाता है। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई है ना, कि जहाँ हम राइस वीट नहीं ग्रो कर सकते हैं वैसे लैंड में हम मिलेट्स ग्रो कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक में ये आ जाएगा कि मिलेट्स कैन बी ग्रोन इवन इन द ड्रायर पार्ट्स वेयर रेनफॉल इज मॉडरेट टू लो। ठीक है, राइस तो नहीं ग्रो कर सकते ऐसे एरियाज में, राइस को बहुत पानी चाहिए, वीट को भी मॉडरेट रेनफॉल जरूर चाहिए, लेकिन ये बिना इरिगेशन के भी ग्रो होता है कई सारे एरियाज में। तो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, कोर्स मतलब मोटे अनाज, कोर्स ग्रेन्स, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। समझ गए, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए मिलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इंडियन एग्रीकल्चर में। फॉर एग्जाम्पल, रागी is very rich in iron, calcium and micronutrients and roughage. रागी के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं इधर, उसको कहते हैं मड़ुआ। सुने हो ना मड़ुआ? तो ज्वार बाजरा और रागी, तो रागी का क्या वैल्यू है, इंपॉर्टेंस क्या है? It is very rich in iron, calcium, micronutrients and roughage. Underline this line. What is the importance of ragi? एक क्वेश्चन लिख लो और इसका आंसर यहां से लिख लेना। Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. ठीक है ना, राइस और वीट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो कौन सा है? ज्वार है। इट इज रेन फेड क्रॉप। रेन फेड क्रॉप क्या होता है बताओ? विच कैन बी ग्रोन विद द वाटर ऑफ रेन ओनली, है ना, जितना भी रेनफॉल हो जाता है उसी से ये क्रॉप ग्रो कर लेते हैं, इसमें कोई इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे क्रॉप को हम कहते हैं रेन फेड क्रॉप, मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज ऑन नंबर 1, देन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो तुम ज्यादातर देखोगे ना कि जो सेंट्रल इंडिया है ना, सेंट्रल इंडिया से लेके साउथ की तरफ वाले जितने स्टेट हैं उसमें ये मिलेट्स ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि वहां पे जो इंटीरियर पार्ट है वहां रेनफॉल भी कम होता है। तो अगर ज्वार के बारे में लिखना होगा तो क्या क्या लिखोगे कि ज्वार इज द मेन क्रॉप अमंग मिलेट्स एंड इट हैज गॉट द 3rd रैंक, राइट? आर यू लिसनिंग? Jowar has got 3rd rank among the cereals and it is grown in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. It is a rain fed crop. No irrigation is required. ठीक है, अब एक तुम लोग में से कोई एक बोलो तो about this ज्वार। Who will speak on ज्वार? Ma'am, can I? Yes. Ma'am, jowar is mainly cultivated in the less rainfall and dry season, and the state of Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, and Telangana. हाँ, it is a rain fed crop, ये भी लिख देना, it is a rain fed crop. ठीक है, एक और मैम, Tanzil, you मैम answer. and they are a food grain and fodder. हाँ ठीक है, Tanzil, are you present? Tanzil, you speak about ज्वार. Not ready to speak. Smita, speak on ज्वार. Any of the girls?
Anirudh, what do you know about ज्वार? Diksha, Harsh Kumar, all of you be ready to speak. है ना? Join the class actively. Bajra. Bajra grows well on sandy soil and shallow black soil. हाँ बोलो. चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे. Bajra grows well on sandy soil and shallow black soil. Sandy soil ज्यादा कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है. ठीक है, तो राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, वहां के सैंडी सॉइल में बाजरा ग्रो कर लेते हैं. एकदम राजस्थान के वेस्टर्न साइड में जाओगे तो वो कंप्लीट डेजर्ट है, वहां कुछ भी नहीं ग्रो कर सकते हैं. लेकिन ईस्टर्न राजस्थान में ये ग्रो करते हैं बाजरा. तो सैंडी सॉइल और कैसा चाहिए? ब्लैक सॉइल. मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. तो देखो जहां पे कहीं पे भी रेनफॉल मॉडरेट टू लो है, वहां ये सारे क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं. तो स्टेट्स में सबसे आगे रहेगा राजस्थान, तब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल. तो ये जो सारे सॉइल है ना, रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, ये सब उधर कर्नाटका के साइड में ज्यादा है. ठीक है ना, मतलब साउथ इंडिया का सदर्न पार्ट उधर ज्यादा है ये. तो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, और फिर एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में भी है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, और रागी का बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है. कौन बताएगा व्हाट इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ रागी? Ragi is very rich in iron, calcium, other micronutrients, and roughage. And which state is the largest producer of ragi? कर्नाटका. कर्नाटका. ओके, अब कर्नाटका के अलावा अगर और स्टेट्स के नाम लिखने हो तो क्या क्या लिखेंगे? कर्नाटका के पास ही हो गया तमिलनाडु. तो बस ये दोनों स्टेट तमिलनाडु में, और बाकी सारे नॉर्थ इंडिया में, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, और ये झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे हिमालयन स्टेट्स हो गए झारखंड को छोड़ के. ठीक है ना. चलो अब थोड़ा सा ये जिस तरह से हम लोग पढ़े ना, इसको ऐसे ही शॉर्ट आंसर्स लिख लेना इसमें कि व्हाट इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ रागी, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, है ना. और इम्पोर्टेंस लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? ओवरऑल इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स इन इंडियन एग्रीकल्चर. सुनो ध्यान से हम क्या बता रहे हैं. हाँ, मिलेट्स रैंक आफ्टर व्हीट एंड राइस. ठीक है, राइस और व्हीट के बाद किसका ये रैंक आता है? मिलेट्स का. ठीक है, तो मिलेट्स आर द third important cereal crop of India, which include jowar, bajra and ragi. Millets are very important in Indian agriculture because they can be grown even in drier areas or even in less rainfall areas. ठीक है ना. क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन एग्रीकल्चर में? क्योंकि ऐसे लैंड जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा कम होता है, जहाँ की हम राइस और व्हीट नहीं ग्रो कर सकते हैं, वहाँ हम मिलेट इजीली ग्रो कर लेते हैं. इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर में मिलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम अपने एग्रीकल्चरल लैंड का मैक्सिमम यूज कर लेते हैं मिलेट्स की वजह से. एंड मिलेट्स आर यूज्ड टू फीड अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. ठीक है, इंडिया के पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े हिस्से को हम मिलेट से ही सरवाइव कराते हैं. तो ये हो गया ना इसका इंपॉर्टेंस कि मिलेट क्यों इंडियन एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है, कि राइस व्हीट के बाद जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको मिलेट्स ही पूरा करता है. और मिलेट्स कम रेनफॉल वाले एरिया में हम ग्रो कर सकते हैं. मिलेट्स का न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है. ठीक है ना, और इंडिया के बहुत बड़े पॉपुलेशन का काम चलता है मिलेट से ही. तो ये सब इसका इंपॉर्टेंस हो गया मिलेट का.
तो कोर्स ग्रेन होने के बावजूद भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो तो 5 टाइम अभी 5 मिनट्स है, तो हम लोग एक और कर लेते हैं। ये देखो वीट के मेजर एरियाज देखो, वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। ये जो डार्क कलर से दिखाया हुआ है ये मेजर एरिया होता है, ठीक है, और जो लाइटर शेड से दिखाया हुआ वो हो गया माइनर एरिया। ठीक है, तो मेजर एरिया में ये सब याद रखो, जम्मू कश्मीर ये हो गया, ये क्या हो गया बताओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, एमपी, ये मेजर एरिया में आ गए इतने सारे। इसके अलावा माइनर एरिया ये देख लो, राजस्थान से लेके गुजरात तक का एक बेल्ट है, फिर इधर पूरा ईस्टर्न यूपी बिहार ये भी वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, और साउथ में देखो बिल्कुल भी वीट प्रोडक्शन नहीं होता है यहाँ पे। क्यों नहीं होता है बताओ, अगर तुमसे पूछे व्हाई वीट कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल इन साउथ इंडिया, व्हाट विल बी योर आंसर? Because there is a lot of rain and rice is Some rainfall. very suitable. There are two main reasons, temperature and rainfall. Temperature is very high. Wheat is a crop of cool climate. But in South India, temperature remains always high, more than 25 degrees Celsius. ठीक है ना, यहाँ 20 से 25 डिग्री से ऊपर ही रहता है, और वो उसके ग्रोइंग टाइम में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और दूसरा है रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल है, इधर ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में रेनफॉल भी ज्यादा है। तो ये यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज नॉट सुटेबल फॉर व्हीट कल्टीवेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल इन द कोस्टल साइड्स। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर मेन हो गया, उसके बाद है रेनफॉल का पोजीशन। तो मिलेट्स के बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, वो क्या है, मेज। तो मेज की एक बार रीडिंग कर दो। मान्या रीडिंग करो तो। मैम चलो जो तैयार रीडिंग करो। It is a crop which is used both as food and fodder. It is a kharif crop which requires temperature between 28 to 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and grow well in the old alluvial soil. In some states, maize is grown in Rabi season. Also, use modern inputs such as HYB seeds, fertilizer, and irrigation have contributed to the increasing production of the maize. Major maize producing states are Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh and Telangana. हाँ, चलो अभी इसके बारे में कुछ बात करें। मेज तुम लोग खाते हो ना? हाँ, मेज को आग में रोस्ट करके और खाते हैं सीधे, भुट्टा, मकई। हाँ, इसको ये सब नामों से जानते हैं, कोई कुछ लोग भुट्टा कहते हैं, कुछ मकई कहते हैं। मेज है, इसी को कॉर्न भी कहते हैं। मेज इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉडर फॉर कैटल। ठीक है ना, एनिमल्स को भी खिलाया जाता है, एनिमल को भी ये खिलाया जाता है, और ये ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं। तो ये बहुत यूजफुल ग्रेन हुआ मेज, एंड इट इज अ खरीफ क्रॉप। और इसके टेम्परेचर इसको ज्यादा ही चाहिए, जैसे राइस के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना, इसे भी ज्यादा चाहिए, जैसे 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। और ओल्ड एलिवियल सॉइल का दूसरा नाम क्या है बताओ तो, 9th में पढ़े थे। Well drained alluvial soil. नहीं, भांगर और खादर पढ़े थे ना, भांगर एंड खादर। भांगर इज ओल्ड एलिवियल सॉइल, जो कि रिवर से काफी दूर हो जाता है, थोड़ी ऊंचाई पे हो जाता है ओल्ड एलिवियल सॉइल। तो ओल्ड एलिवियल सॉइल में इरिगेशन के हेल्प से मेज का कल्टीवेशन करते हैं।
ठीक है, और ये बिहार में रबी सीजन में ग्रो करते हैं, बाकी जगहों में यह विंटर सीजन का क्रॉप है। ठीक है, और HYV सीड यूज होता है, फर्टिलाइजर, इरिगेशन सब कुछ यूज करते हैं और बम्पर प्रोडक्शन करते हैं मेज का। बिहार का एक अच्छा रैंक है इसमें मेज प्रोडक्शन में। ठीक है ना, और स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग। तो तुम लोग एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो कि